Hi, this is Karan Singh. Welcome back to the class. In today's lecture of 9th standard, we are going to continue with our maths topic. Okay, the chapter surface area and volume. In the last few lectures, we have completed the area section. We have completed the topics of area. We have seen a few 3D figures. Okay, solid figures. We call it actually those figures as the solid figures like cube, cuboid, cone, cylinder, okay, sphere. These are known as the solid figures. So we have seen the area of the solid figures and how to calculate them. Now we are going to see the volume of cuboid. Okay, now we are going to see the volume of cuboid. Now volume of is going to be the volume exercises. So volume of cuboid, we'll talk about the volume. So volume of cuboid is very simple. Now if you see the figure, this is the figure already made. So I will just try to nomenclate it by few of the things. So this is the, let's say this is the length, this is the breadth, and this side is the height. So the volume is basically the space, the air occupied space inside this box is known as volume. So calculating the volume is very simple. So the volume of a cuboid is length into breadth into height. So volume of a cuboid is L into B into H. So the volume part, you will experience one thing, the volume part of this chapter is quite easier as compared to the area part. Okay, always the volume part is easier as compared to the area part. Now let's move further. The next solid figure is cube. Cube, we know that volume is what? Side into side into side. So side into side into side, that is a cube. Like we had 6a square for the total surface of area of a cube. Here if you have to find the volume of a cube, you just need to be doing side into side into side. That's known as side cube, a cube. Okay, so whatever, maybe it will be 3, 3, 3. So 3 cube, that will be 27. Okay, that is known as the side cube. So volume has the SI unit cube. Like there you are writing centimeter square, meter square. Okay, but here you are going to write cube. Okay, in volume also you are going to write cube. Why? Because there are 3 dimensions. L का भी 1 मीटर होगा, breadth का भी 1 मीटर होगा और हाइट का भी 1 मीटर होगा. तीनों मीटर मिलकर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बनाएंगे? मीटर क्यूब. इसलिए वॉल्यूम में क्या होता है? क्यूब में होता है ऐसा यूनिट. सो चलिए फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं. आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. ओके, so as we move to the example, a wall of length 10 meter was to be built across an open ground. A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. If the wall is to be built with the bricks whose dimension is this, how many bricks would be required? So I hope you understand the question. मतलब एक ग्राउंड है, ग्राउंड के कोने पे वॉल बनाने वाले हैं. ओके, तो वॉल का लेंथ गिवन है. ओके, 10 मीटर. ओके, द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर. हाइट गिवन है वॉल की. एंड द थिकनेस इज 24. मतलब जो वॉल होगा वो इस तरह से होगा. तो ये इसकी हाइट हो गई 4 मीटर, लेंथ हो गई 10 मीटर एंड थिकनेस हो गई 24 सेंटीमीटर. तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे एंड फिर एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे. बट ये याद रखना कि डिवाइड करने की जल्दीबाजी मत करो. मतलब सबसे पहला काम, आप देखिए ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में.
तो एक काम करते हैं, सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, क्योंकि मीटर में करोगे तो इन सबको मीटर में करोगे तो पॉइंट्स में हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको पहले सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वॉल का लेंथ है, ओके, लेंथ ऑफ वॉल इज़ 10 मीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर, ओके। फिर वॉल की हाइट है 400 एंड जो थिकनेस है 24, ओके। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये लिख दिया ऐसा, ओके। सेम एक ब्रिक का कितना है 24 इंटू 12 इंटू 18, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, छोड़ देना है ऐसे ही, ओके। फिर क्या करना है, हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा मेन आंसर तो ये नहीं है, मेन आंसर क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स, सो द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो अब ऐसा क्यों छोड़ने का फ़ायदा क्या है कि आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे ना तो फिर डबल मेहनत होगी। अब यहाँ मल्टीप्लाइड करना ईजी रहेगा, क्यों, देखो 24 और 24 कट हो जाएगा ईजिली। नाउ 8 है तो 4 2s 400s, ओके। सो सी कितना ईजी का जो कटिंग करना है कितना ईजी हो रहा है, 250, ओके। नाउ अब और कट करना हो तो देखो ये 2 500, ये हो गया 6, ओके। फिर और कट कर सकते 2 3s, यहाँ पे हो जाएगा 250, तो 250 इंटू 50 आपके पास है यहाँ पे, ओके, अपॉन 3 है, नाउ डिवाइडेड एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। तो आपको आंसर मिला 4166.6। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखे, हम अप्रॉक्स कर देंगे, 41166 की जगह पे 41167 कर देंगे, क्यों, यहाँ 5 से बड़ा होता है पॉइंट के बाद तो हम एक राउंड फिगर बढ़ा देते हैं, मतलब जो हमारा लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे 6 है उसको हम क्या कर देंगे 7, तो 4167, ठीक है, ओके। तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A child playing with a building block which are of the shape of cubes has built a structure as shown in the figure, okay। जो child है, building block which are in the shape of a cube has built a structure as shown in the figure, जैसा फिगर में शो किया है वैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ओके, इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3, जो एज है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, राइट, ये हो गया आपका क्या 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, ये आपका हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द स्ट्रक्चर इज 15 है, एक क्यूब का 27, तो टोटल कितने, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब का 27 सेंटीमीटर क्यूब, 15 क्यूब्स है, तो 27 इंटू 15 दैट इज 405 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। देखा वॉल्यूम एज कंपेयर टू द एरिया इज वेरी वेरी सिंपल, अंडरस्टूड। ये कुछ क्वेश्चंस है, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं समझ में आया या आप नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट लिटरली वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इट, बट प्लीज सॉल्व एंड पुट अप द डाउट्स, then and then only I can help you. If you are not putting up any doubt, I am not going to help you because I will not be able to understand that what is the problem you are having. Now next is volume of a cylinder, okay, volume of a cylinder, that's what we have to find out. So volume of a cylinder, just a cuboid, अब volume of cylinder क्या होगा, देखो वॉल्यूम सिलेंडर मतलब ये रहा सिलेंडर, अब वॉल्यूम मतलब ये अंदर का जो पूरा मटेरियल है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो एक सिलेंडर का ऊपर वाला मटेरियल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और अगर ये है मटेरियल तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर मुझे अंदर का मटेरियल निकालना है पूरा तो मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, बट ये एरिया इतना नीचे तक है तो ये हाइट भी है, तो क्या कर दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो द वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, क्यों, पाई आर स्क्वायर किसके लिए, सर्कुलर पोर्शन के लिए, और ये पाई आर स्क्वायर कहाँ तक है, यहाँ तक, नीचे तक है, तो दैट इज एच, सो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर,
So this is the volume of the cylinder is pi r square h. Understood? Clear? So let's move further and see the example. Example 13. The pillars of a temple are cylindrical shape. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and a height 10 meter, how much concrete mixture would be required for such 14 such pillars? Wait. So let's see what they want to say. That the pillar of a temple are cylindrical. So pillar तो cylindrical shape में है. ये देखिए pillar दिख रहा है diagram में. If each pillar has a circular base and radius 20 centimeter, height is 10 meter, how much concrete would require to build 14? तो जब अगर एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल ले तो 14 का हमको मिल जाएगा. तो पहली बात तो सिलेंड्रिकल ऐसे इस तरह का पिलर है, तो उसका बेस रेडियस गिवन है, मतलब आर गिवन, हमको आर चाहिए ही, तो आर गिवन है. आर 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 मीटर है. तो एक काम करते हैं, हाइट को हम 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, सो हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई 22/7 आर स्क्वायर एंड दिस इज एच. ओके, तो हमने पुट कर दिया. उसके बाद सिंपली हमको कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेशन भी अगर किसी को ना समझ में आता तो समझा दूँ मैं. वैसे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 7 से कट मत करो पहले, क्योंकि यहाँ कुछ कट नहीं होने वाला. पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 20 × 20 दैट इज़ 400 इंटू 1000 इंटू 22. पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 7 कर दो. तो डिवाइड बाई 7 किया आपने. ओके, अब आपको क्या करना था, अब आपको एक और चीज़ है. कितने आपके पिलर्स थे? 14. तो एक पिलर का वॉल्यूम मिला, इंटू 14 कर दो. ठीक है, तो 8 to 14 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 7 2 ज़ा 14, तो 8.8 इंटू 2 कर दो तो आएगा 17.6 मीटर क्यूब. मतलब इतना कॉन्क्रीट. आपको देखिए इन सब क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो लिखना ही है लास्ट में. सो 14 पिलर्स वुड नीड 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर. इतना कॉन्क्रीट मिक्सचर चाहिए 14 पिलर के लिए. ओके, चलो आगे देखते हैं. एग्जाम्पल 14. At a Ramzan Mela, a stall keeper is in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter. 32 centimeter की height तक भरा हुआ with orange juices. The juice is filled in a small cylindrical glass of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for rupees 3 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? पूरा जूस बेच के उसे कितना मिलेगा, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर कितना जूस है और एक के अंदर कितने जूस आएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कितनी ग्लासेस भर पाएगा ये सिलेंडर. और एक ग्लास का 3 रुपीज़ है, तो जितने ग्लासेस वो भर पाएगा उसको इंटू 3 कर देंगे. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द बिगर टैंक निकालेंगे. तो उसमें हमारे पास रेडियस 15 है, हाइट भी 32 गिवन है. ओके, और यहाँ पे छोटी वाली ग्लास का रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है. तो दोनों में पाई आर स्क्वायर एच लगा देते हैं. तो चलो देखते हैं. पहले टैंक का, जूस वेसल का, द वॉल्यूम जूस वेसल पाई आर स्क्वायर एच. और यहाँ पे बड़े आर और एच क्यों बढ़ा लिया है, क्योंकि समझाने के लिए टैंक बड़ा है तो उसका रेडियस को बड़े से दिखाया है. तो पाई इंटू ये रखा. अब पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पाई कट जाएगा, तो वैल्यू रखने की मतलब ही नहीं है. ओके, देन मैंने बताया कि इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको लास्ट में सॉल्व करना है. द वॉल्यूम ऑफ जूस ऑफ ईच क्लास पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8. ये दोनों रेडियस है और हाइट 8 है. अब कितने ग्लासेस बन सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस दैट आर सोल्ड कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्लास. ये रहा पाई कट, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. ओके, 8 4 ज़ा 32. ओके, तो 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. तो 100 ग्लासेस. ओके, अब द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टॉल कीपर, 100 ग्लासेस हैं, एक ग्लास का 3 रुपये, 300 इक्वल टू 300 रुपीज़. ओके, क्लियर. सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर देखिए, बड़ा सिंपल सा है. ओके, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है. ओके,
तो थोड़ा आप एक एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तब जाके आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा. ओके, सो प्लीज़ डू ट्राई टू सॉल्व इट एंड collect the doubts. If you have any doubts, I will be happy to help. Okay, but please try to solve the chapter completely, because this chapter is quite lengthy, so it is having the weightage also according to the length. And even if you talk about the 10th standard, this chapter is going to come again in 10th standard with same formulas and updated version. So अगर ये जिसको नहीं पता है अपडेट वर्जन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो इतना तो पता होना चाहिए. इसलिए फॉर 10th standard also, keeping that thing in mind, study and prepare by keeping the point of view of 10th standard also. Okay, so we'll meet in the next lecture. Till then, please complete this much, and in the next topic we are going to complete this chapter, because we'll start with cone and sphere, the last two topics we are having. So stay at home, study properly. Thank you and have a nice day.